So let's start with one of the most prominent topic as far as the chemistry is concerned. We did a part of the chemistry in first term. The basic objective of understanding the chemistry over there is to understand the meaning of chemical reaction and its types. Then followed by what do you mean by chemical bonding? And we studied about the electrovalent bonding, the compounds so formed, and physical and chemical properties of metal and non-metal. Over there, the entire discussion about the already being omitted, लेकिन हम कर चुके थे, right? Then we came across about some general topic like acid, base, and salts. That was the portion related to the chemistry as far as term 1 was concerned. Now, term 2 is specifically related to organic chemistry and the arrangement of elements. So, these two chapters are one of the most prominent chapters in order to understand the chemistry at the highest standard as well, right? Chemistry broadly classified into three parts: physical chemistry, inorganic chemistry, and organic chemistry. Right? Physical chemistry is basically related to chemical bonding, structure of atom, redox reaction, something of that sort. As far as the inorganic chemistry is concerned, right, that is already we started, but in higher classes we will study about the transition and inner transition elements. And the chapter was broadly known as P and DF, P block elements, D and F block elements. Quite extensive study over there available as far as the 12th class is concerned. So we are not concerned about that. The third phase is the organic chemistry. तो हम केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से. पहली बात तो ये उठती है कि मैंने इतने टाइप्स तो बता दिए इसके. What do you mean by chemistry? Chemistry is a branch of science that deals with the study of elements and their compounds. Right? And the compound formed with the help of these elements. Right? The formation of compound requires a fundamental process known as chemical bonding, right? That chemical bonding yields specifically two kind of compound to us. बेटे ध्यान से समझो पहले. Everything is available to you. The chemical bonding yields to us the two main important kinds of compound. The first one is known as inorganic compounds, and second the organic compounds. There are approximately 36,000 inorganic compounds are available to us, known to us. But as far as the organic compounds are concerned, more than 6 lakhs organic compounds are available to us. Such a large extension of the organic compound is available to us because of the existence of one of the most fundamental, a small, a light, a normal element known as carbon. Carbon by itself is a very weak element. It has the atomic number 6, electronic configuration 2,4. It doesn't consider to be a powerful element, cannot interact with the other elements, right? But the moment this carbon attaches itself with another carbon and so on and so forth, it leads to the formation of one of the most strongest bond and held responsible for the creation of at least 6 lakhs organic compounds available to us. Right? It's a very interesting topic, and the extension of the same at the 11th level is totally conceptual. Over there, you will come to know about the conversion reaction. More than 600 conversion reactions are available. Right? And how to convert one chemical reaction into another one requires the entire basic conceptual detail of organic chemistry. Right? The fundamental aspect of the same starts on 10th class. Right? So, chemistry, which is basically the branch of science that deals with the study of elements and their compounds. तो उन compounds में से हमारा जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है वो है ऑर्गेनिक compounds में. Organic compounds, basically the compounds which are formed with the help of non-metals, right? और हम जहाँ जो एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, नॉन मेटल्स की जो बात कर रहे हैं, वो नॉर्मल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, right? So we are concerned about the normal elements.
देखो यार क्लास डिस्टर्ब हो रही है मेरी बहुत ज्यादा, एंड प्लीज टेक हिम अवे। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को समझने के लिए, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम दोबारा वो रिवीजन करेंगे जो हम ऑलरेडी फर्स्ट टर्म में कर चुके हैं, लेकिन स्पेसिफिकली रिलेटेड टू कोवलेंट कंपाउंड्स, राइट? सो आवर चैप्टर स्टार्ट्स फ्रॉम द मीनिंग ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। What do you mean by chemical bonding? Anybody? What is chemical bond? Chemical bonding is force that binds the atoms of different elements. Chemical bond is defined as a force. It is, मैं लिखूंगा इस definition को, पहले समझिएगा. It is defined as a force that binds atoms together in the form of a molecule. Right? तो केमिकल बॉन्ड अपने आप में एक फोर्स है जो एटम्स, चाहे वो एटम्स एक ही एलिमेंट के हों, चाहे एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के हों, उनको बाइंड करती है, बांधती है in the form of molecule. And you know better about the molecule. Molecule is nothing but the simplest substance, is basically the substance that comprises of two or more than two atoms that may belong to the same elements or with the different elements. ये 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं. तो मॉलिक्यूल बनाने की प्रक्रिया को, उसकी प्रोसेस को हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं, राइट? और बेसिकली ये होता क्या है, ये एक फोर्स होती है, फोर्स जो बांध के रखती है दो या दो से ज्यादा एटम्स को एक दूसरे के साथ, राइट? तो लिखिए इस बारे में, केमिकल बॉन्डिंग इज डिफाइंड एज ए फोर्स, केमिकल बॉन्डिंग इज डिफाइंड एज ए फोर्स, chemical bonding is defined as force that binds atom together, in a molecule. तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यहां हम कोवलेंट बॉन्ड को देखेंगे. तो वी आर राइट नाउ कंसर्न्ड अबाउट कोवलेंट बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड टेक्निकली दो टाइप्स के होते हैं, है तो इसकी बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव डिटेल्स. केमिकल बॉन्डिंग अपने आप में 1.5 महीने में खत्म होने वाला चैप्टर है 11th में, लेकिन जो मोस्ट एसेंशियल है वो बता रहा हूं. एक है पोलर कोवलेंट बॉन्ड, दूसरा है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड. And in terms of the sharing of electrons, in terms of the sharing of pair of electrons, covalent bond again broadly classified as 3 parts में. Single covalent bond, double covalent bond and triple covalent bond, right? Various examples of single are available to us as H2 hydrogen molecule, chlorine molecule, right? Then fluorine, hydrochloric acid HCl, water, ammonia, ethane, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, राइट? डबल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर वी हैव ऑक्सीजन, वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड, वी हैव इथीन, वी हैव प्रोपीन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारे, राइट? और ट्रिपल के केस के अंदर हम लें, नाइट्रोजन का एग्जांपल हो गया, इथाइन का एग्जांपल हो गया, प्रोपाइन, C4H6 एक्सेट्रा.
अभी ये जो मैंने नाम बोले हैं, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। आपको विद इन जैसे जैसे समय बीतेगा, क्लास बीतेगी, आपको सब समझ में आ जाएगा, आराम से पता लग जाएगा किसका क्या नाम है, राइट। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या है? इट इज बेसिकली ए केमिकल बॉन्ड। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही टेक्निकल डिस्कशन चल रहा है इस चैप्टर में से, जो बहुत मतलब इंट्रिंसिक क्वेश्चन है, गारंटेड क्वेश्चन है, जो आज ही की क्लास है इसी से रिलेटेड है। 2 नंबर का क्वेश्चन आना है, 3 नंबर का भी आ सकता है, और जो आएगा वो आज हम कर चुके होंगे, राइट। कोवलेंट बॉन्ड, अब केमिकल बॉन्ड है वो तो समझ आ गया क्या होता है। कोवलेंट बॉन्ड इज डिफाइंड एज द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स between two atoms, right? Yeah, amongst the atoms, तो नहीं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, राइट। लेकिन फिलहाल हम चीज को सिंपल वे में समझेंगे। कोवलेंट बॉन्ड इज द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। लिख दो, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। अब बात ये उठती है कि कंपाउंड्स क्यों बनते हैं। कंपाउंड बनते कैसे हैं, वो तो केमिकल बॉन्ड उसका रीजन हो गया। केमिकल बॉन्ड 4-5 तरीके के हैं, वो हायर क्लास में देखोगे। इलेक्ट्रोवैलेंट आप देख चुके हैं। कोवलेंट बॉन्ड की जो बात हो रही है, तो ये कंपाउंड बनते क्यों हैं। हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2 क्यों बनाता है भाई। क्लोरीन के साथ क्यों बनाता है। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर HCl क्यों बनाता है। अरे हमने फर्स्ट टर्म में देखा था, सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड नमक क्यों बनाएगा। What is the reason of the formation of compound? Tell me. To attain stability or inorganic electronic. Excellent. Atoms of every element would like to attain stability. भाई दुनिया में चाहे लिविंग बींग्स हो या नॉन लिविंग बींग्स हो, सब स्टेबल रहना चाहते हैं। तो जहां तक स्टेबिलिटी का सवाल है, एलिमेंट्स की स्टेबिलिटी का सवाल है, तो उसकी स्टेबिलिटी का एक नाम दिया गया है इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। Atoms of every element would like to attain stability. Atoms of every element would like to attain stability, right? By achieving inert gas electronic configuration. अब what do you mean by this inert gas electronic configuration? देखो, एटम, हर एलिमेंट का एटम, मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली रिलेटेड नॉर्मल एलिमेंट्स से, हैवी एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा, वहां थोड़े कुछ चेंजेस आ जाते हैं। जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के एटम्स स्टेबल रहना चाहते हैं, ओवरऑल एलिमेंट स्टेबल रहना चाहते हैं। तो स्टेबिलिटी का एक रूल ये है कि इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम अदर वे में देखें तो इसे हम ड्यूप्लेट कहते हैं या ऑक्टेट स्टेट कहते हैं। ड्यूप्लेट स्टेट या ऑक्टेट स्टेट। ड्यूप्लेट इज अचीवेबल ओनली विद 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ड्यूप्लेट मतलब 2, राइट, और ऑक्टेट मींस 8 other normal elements. So duplet state is the state at which there should be an existence of 2 electrons in the outermost shell. Electronic configuration of elements 9th क्लास में आप कर चुके हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्लोरीन का करूं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका होगा 281। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 24। क्लोरीन का सॉरी गलत बोल दिया मैंने, 287, जो सोडियम का बोल दिया था 287, सोडियम का होगा 281, राइट। मैग्नीशियम का हो गया 282, एल्युमिनियम का हो गया 283, कैल्शियम का हो गया 2882, राइट। और अगर हम बात करें, इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। If we know their electron, if we know the atomic number, we can easily create the electronic configuration जो हमने 9th क्लास से पढ़ा है।
तो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो हाइड्रोजन स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहता है? अब उसके पास, बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही शेल है। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट इन दिस यूनिवर्स। हाइड्रोजन इस धरती पे सबसे लाइट है, हमें मालूम है इस बारे में, राइट। अगर उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो भी उसके पहले ही शेल, जो पहला ही जो शेल है, ये जो शेल है वही उसका आउटरमोस्ट शेल भी है। लेकिन हाइड्रोजन भी स्टेबिलिटी चाहेगा, और वो चाहेगा कि उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, चाहे ट्रांसफर से मिल रहा है, चाहे शेयरिंग से मिल रहा है। तो अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया बाहर से किसी और एटम के थ्रू, राइट, या एटम ऑफ द सेम एलिमेंट के थ्रू, तो ये स्टेबल हो जाएगा, राइट। हीलियम तो ऑलरेडी उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी छोटा है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और एक ही शेल है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन होने का हीलियम इज स्टेबल। हीलियम को स्टेबिलिटी के लिए अपने को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, उसके पास ड्यूप्लेट स्टेट ऑलरेडी अचीव्ड है, राइट। तो हीलियम हो गया, नियोन हो गया, ये आर्गन, these are basically the elements which are available in the 18th group of the periodic table and considered to be the stable elements, unreactive elements। लेकिन सच्चाई नहीं है ऐसी, इसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन है जो हायर क्लास में देखेंगे आप, राइट। यानी कि हर वो एलिमेंट, अब ध्यान से सुनना, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मकसद, मतलब क्या है कि एटम ऑफ एवरी एलिमेंट वुड लाइक टू अटेन आइदर 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। या आउटरमोस्ट शेल के अंदर या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल है। अब मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, तो वो क्या करते हैं, या तो वो एलिमेंट के, एक एलिमेंट के अंदर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो वो 2 या 2 से ज्यादा एटम एक एलिमेंट के इंटरेक्ट कर कोशिश करेंगे ड्यूप्लेट या ऑक्टेट कंडीशन को हासिल करने के लिए। तो केमिकल बॉन्डिंग वो प्रोसेस है जो कि इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने में मदद करता है, राइट, और फाइनली अकम्प्लिश कर देता है विद द हेल्प ऑफ ए फोर्स व्हिच इज नोन एज केमिकल बॉन्ड, राइट। तो अब अगर यहां पर हम बात कर रहे हैं कोवलेंट बॉन्डिंग की, तो कोवलेंट बॉन्ड क्या है? ये बेसिकली वो बॉन्ड है जो केवल नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या होता है? वहां डोनर है और एक्सेप्टर है, राइट। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो हम फर्स्ट टर्म में देख चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम एलिमेंट क्या है? मेटल। क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, दे ऑल आर द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग, राइट। लेकिन अगर हम बात करते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग की, तो यहां पर कोई डोनर नहीं है। कहने का मतलब है, डोनर का मतलब रिच, भाई डोनेट कौन करेगा? जो रिच होगा, राइट। तो ये जो कोवलेंट बॉन्डिंग की प्रोसेस है, ये बेसिकली वीक एलिमेंट्स में ही है। हम कह सकते हैं कि भाई जो डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स की जो डेफिशिएंसी है, उन्होंने आपस में एक समझौता कर लिया कि हम स्टेबल होंगे अपनी अपनी चीज को शेयर करके। शेयरिंग के अंदर शेयर की हुई चीज को वापस लिया जा सकता है, लेकिन डोनेट की हुई चीज को वापस ले सकते हैं क्या? जो डोनेट कर दिया परमानेंटली कर दिया, सोडियम इलेक्ट्रॉन खो दिया, क्लोरीन के लिए हमेशा के लिए खोल दिया ना। अब सोडियम के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को वापस मांग सके। लेकिन H2 के केस के अंदर, क्लोरीन के केस के अंदर, HCl के केस में नहीं, राइट। और CCl के केस के अंदर पॉसिबल है कि 4 क्लोरीन एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर अपना अपना रास्ता ले लें, कार्बन अपना रास्ता ले ले, हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन अपना, भाई आपको लड़ाई होगी आपस में H2 के बीच में। अब वो कहता है भाई हम अपनी अब जो शेयरिंग की बॉन्डिंग है वो तोड़ते हैं, मैं अलग तू अलग। दिस इज पॉसिबल इन केस ऑफ शेयरिंग बट नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ डोनेशन। तो कोवलेंट बॉन्ड इज द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 2 एटम्स चाहे वो एक ही एलिमेंट के हैं या अलग अलग एलिमेंट के हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है टू अचीव इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि ड्यूप्लेट और ऑक्टेट कंडीशन को हासिल करने के लिए 2 ऐसे एटम्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं जिनके पास अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, एंड ऑलवेज बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ नॉन मेटल्स, क्योंकि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। जो एक्सेप्ट करना चाहता है वो डोनेट क्या करेगा? तो यहां पर हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के बारे में मैं बता रहा हूं।
कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब समझ में आ गया, द बॉन्ड दैट इज फाउंड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वो शेयरिंग कैसे होती है, लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। अब जो मैं बता रहा हूं आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्रिएट द थ्री काइंड ऑफ स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट वन, इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम। The second is structural formula, and third one is orbital diagram. First, H2, हाइड्रोजन। इसका तीनों बता रहा हूं मैं आपको। हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको मैं इस डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। प्लीज सबका फोकस अब यहां होना चाहिए, ये क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे, समझो। राइट, तो इस हाइड्रोजन एटम ने हाइड्रोजन एलिमेंट के दूसरे एटम के साथ राइट एक समझौता किया कि हम शेयर करेंगे, और ये इस तरीके से शेयर कर दिया इन्होंने। तो आप देखो मैंने दोनों डॉट्स जो है ना ऑलमोस्ट एट द मिड पॉइंट ऑफ पेयर ऑफ हाइड्रोजन रखा है मैंने। शेयर हो गया। शेयर का मतलब क्या हुआ बेटा जी, यहां देखिए, इस हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे वाले के पास भी दो इलेक्ट्रॉन आ गए या नहीं आ गए, यानी कि दोनों हाइड्रोजन शेयर करने के कारण स्टेबल हो गए। दे अचीव ड्यूप्लेट स्टेट। राइट, दिस वन इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम। इस डायग्राम को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम। अब यहां पर ये जो डॉट है दो, इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इस लाइन से। इस लाइन का मतलब क्या है, बॉन्ड है ये, यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों की एक्सट्रीमिटी पर इलेक्ट्रॉन है। बट अंडरस्टूड है इस बात का मतलब, क्लियर। इसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल डायग्राम। स्ट्रक्चरल डायग्राम, क्लियर। अब अगर मैं एक इस तरीके का सर्कल बना देता हूं हाइपोथेटिकल, और उसमें हाइड्रोजन रख देता हूं, और उसके इलेक्ट्रॉन को इसके एक पेरीफेरी पे दिखा देता हूं, दूसरे को हाइड्रोजन को मैं इसके पेरीफेरी पे दिखा देता हूं, और अभी दोनों सर्कल्स को मैं पार्शियली ओवरलैप कर देता हूं। तो ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये पार्शियली ओवरलैप में ये कॉमन रीजन हो गया या नहीं हो गया। और कॉमन रीजन के अंदर ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, इसे कहते हैं हम ऑर्बिटल डायग्राम। इज इट क्लियर। तो अगर आपको आता है H2 का इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम बनाओ, बना दिया, स्ट्रक्चरल डायग्राम बना दिया, पक्का आएगा क्वेश्चन इसमें। राइट, और ऑर्बिटल डायग्राम क्लियर है। ये जो दो इलेक्ट्रॉन बेटा जी आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, ये जो दो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं ये, राइट, इनको हम कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि शेयर हो चुके हैं, राइट, उसको हम क्या कहेंगे, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। राइट, तो दिस इज रिलेटेड टू हाइड्रोजन। तो आप देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में मैंने कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों के बीच में कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, एक, वन पेयर, मतलब एक पेयर में तो दो होते हैं ना। राइट, तो अगर दो एटम्स के बीच में शेयरिंग केवल एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हो रही हो, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हो रही हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। The molecule is formed with the help of single covalent bond. Single covalent bond is defined as the bond that is formed by the sharing of one pair of electrons between atoms. Right? I hope ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम चलते हैं क्लोरीन पर, Cl2। भाई ऑनलाइन सबको समझ में आ रहे हैं ना। अगर हम Cl2 की बात करते हैं तो क्लोरीन के केस के अंदर इस क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। सुनंदा का फोन आ रहा है तो जरा। इस वाले क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है। राइट, 7 electrons belongs to this one, 7 electrons belongs to this one। अब इन दोनों के बीच में शेयरिंग करने जा रहा हूं। राइट, तो शेयरिंग ये इस तरीके से हुई। प्लीज सबका फोकस यही होना चाहिए।
ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ हो गया, पहले वाले का, दूसरे वाले का ये हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस वाले क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, काउंट करो। इसके पास कितने हो गए, राइट। तो इस तरीके से हमने क्या पाया कि क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये जो स्लैश मैंने लिया है ये स्ट्रक्चरल डायग्राम बना दिया मैंने इसका, राइट। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इन्हें हम क्या कहेंगे, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो बाकी के जो आपको इस क्लोरीन के 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, दे आर रिगार्डेड टू बी व्हाट, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ Cl2 and also provide how many lone pair of electrons are available। कितने lone pair of electrons है इसमें, 1 2 3 4 5 6 6। एक पेयर ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। लोन पेयर मतलब lone pair of electrons are those electrons which don't contribute for the formation of covalent bonding। जो कोवलेंट बॉन्डिंग बनाने में कोई अपना रोल अदा ना करें उसको हम क्या कहेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर। और रही बात इसके ऑर्बिटल डायग्राम की, तो ऑर्बिटल डायग्राम हमारा कैसा होगा, क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 ये लिया, कंबाइन किया आपने इसको इस तरीके से, ये 2 इलेक्ट्रॉन अंदर आ गए ना इसके, ये वाला मान लिया, ये वाला, ये क्लोरीन, राइट। भाई बाकी के तो यहां पर 6 हैं, इसके 6 हैं। इस क्लोरीन के पास ये जो कॉमन रीजन है that represents the shared pair of electrons, this chlorine has 8 electrons, now this one also has 8 electrons। Did you get it? This is known as orbital diagram for the chlorine। इसी तरीके से समझ में आ गया। तो यहां एक वर्ड आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, एक तो पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी, अब एक है कोवैलेंसी। ये वाइवा में पूछेंगे व्हाट डू मीन बाय कोवैलेंसी। कोवैलेंसी इज द रिक्विजिट, व्हाट डू मीन बाय वैलेंसी, पहली बात तो ये व्हाट इज वैलेंसी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। जैसे वैलेंसी ऑफ सोडियम 1 है, क्लोरीन की भी 1 है, लेकिन डिफरेंस है क्या, तो क्लोरीन की जो सोडियम की है वो +1 है और क्लोरीन की -1 है, क्योंकि वो गेन कर रहा है ना, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इट इज गोइंग टू बी एनरिच्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो कोवैलेंसी इज द रिक्विजिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, राइट। तो हाइड्रोजन की कोवैलेंसी क्या है, 1, क्लोरीन की क्या है 1, नाइट्रोजन की क्या है 3, ऑक्सीजन की क्या है 2, राइट। ऐसे हम बहुत सारे देखेंगे। अब यहां पर आप देखिए कि मैंने हाइड्रोजन ये और ये बताया, अब मैं HCl और बता रहा हूं क्योंकि मुझे पोलर और नॉन पोलर बताना है। फिर उसके बाद हम थोड़ा पानी का भी देखेंगे और अमोनिया भी देखेंगे। ये CH3 और CH ये हम बाद में देखेंगे, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में देखेंगे, बिकॉज दीज 3 आर नथिंग बट हाइड्रोकार्बन्स, दिस इज बेसिकली एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ HCl। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से ले रहा हूं। देखो जब एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हो ना तो इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग रिप्रेजेंट करना, एक के डॉट से रिप्रेजेंट कर देना, दूसरे के क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देना। तो क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब इन दोनों के बीच में जो है शेयरिंग हुई, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, और वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एसिड हमारे सामने देता है, दिस इज नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl।
तो अब जरा ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन और एक क्रॉस, तो क्या मैंने ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का है, ये क्रॉस है, क्या ये मैंने इन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन रखे हैं या टूवर्ड्स क्लोरीन कर दिए? टूवर्ड्स क्लोरीन। टूवर्ड्स क्लोरीन का मतलब है कि क्लोरीन के आसपास का जो एनवायरनमेंट है एनरिच्ड विद इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसे मैं डेल्टा नेगेटिव कह सकता हूं। डेल्टा नेगेटिव मतलब ए सर्टेन अमाउंट ऑफ नेगेटिव कैरेक्टर इज ऑल सराउंडिंग द क्लोरीन। और हाइड्रोजन के पास एक डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दे रहा है इसके आसपास इलेक्ट्रॉन, तो डेल्टा पॉजिटिव हो गया, राइट। तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो कहानी होती है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की, लेकिन ये तो कोवैलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग से हुआ है। द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेक्स प्लेस बाय द शेयरिंग ऑफ one pair of electrons between hydrogen and chlorine. Then why it is there to have the formation of positive and negative? That is what is very very important and may come into your board examination. Justify why there are existence of polar. Dipoles exist over hydrochloric acid. Di मतलब two poles, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो पोल हो गए या नहीं हो गए? हाइड्रोजन पे पॉजिटिव क्यों है, क्लोरीन पे नेगेटिव क्यों है, ये मैं बता चुका था टर्म 1 के अंदर, तो कौन एक्सप्लेन करेगा इसकी? कैन यू टेल मी? कोई बात नहीं, नॉमिनेट करेगा हाइड्रोजन के ऊपर जब वो अपना उसका इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा। अगर आपने उससे बताया था कि क्लोरीन ज्यादा पावरफुल है और हाइड्रोजन नहीं, आपका ऑलमोस्ट ध्यान है, कोई बात नहीं, उस समय हमारा एरिया ऑफ कंसर्न भी नहीं था, आज समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। हुआ क्या, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एग्रीमेंट हुआ, राइट, कि भाई हम दोनों स्टेबल होना चाहते हैं, हाइड्रोजन का मुझे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन का तो मैं दूंगा, क्लोरीन का मुझे भी चाहिए तो हाइड्रोजन का मैं भी तो दे रहा हूँ, कोई ऐसा थोड़ा ना एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, राइट। तो शेयरिंग हो गई, इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, अब देखा जाए तो शेयरिंग इस तरीके से हुई ना, ऐसा बनना चाहिए था ना, डॉट और क्रॉस एग्जैक्टली इन बिटवीन हाइड्रोजन और क्लोरीन आना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा हो रहा है नहीं। हुआ क्या, क्लोरीन ने हाइड्रोजन को धोखा दे दिया, उसने उससे ये कहा कि ठीक है हम शेयर करते हैं, तो हाइड्रोजन सीधा था, उसने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, इस भरोसे के साथ जब मन होगा मैं वापस ले लूंगा। लेकिन क्लोरीन की सेना ज्यादा है, हाइड्रोजन के पास बेचारे के पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसके पास 7 है, तो उन 7 ने क्या किया, क्लोरीन बीइंग पावरफुल, उसने जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है उसे अपनी तरफ खींच लिया। अब हाइड्रोजन चाहता मैं वापस ले लूं, पॉसिबल ही नहीं है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ने एक तरीके से, क्लोरीन ने एक तरीके से जबरन छीन लिया इलेक्ट्रॉन उसका, और हाइड्रोजन के चारों तरफ एक डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गई, तो पॉजिटिव कैरेक्टर बन गया नहीं बन गया, क्लोरीन के चारों तरफ एक नेगेटिव कैरेक्टर आ गया, राइट। तो कहने का मतलब हुआ क्लोरीन इज मोर पावरफुल देन हाइड्रोजन। तो जब कभी भी दो एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के होंगे और कोई एक ज्यादा पावरफुल होगा, यानी कि एनरिच विद इलेक्ट्रॉन होगा विद रिस्पेक्ट टू द अदर, तो वहां पर पोल्स बन जाएंगे। वो कहने को हो रही है शेयरिंग, बट अल्टीमेटली इट्स अ केस ऑफ ट्रांसफरिंग। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बीइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड but acquires most of the feature of inorganic compounds. हाइड्रोक्लोरिक के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली नॉट soluble in water, they are soluble in organic solvents. ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में मिजिबल होते हैं, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन पानी के साथ मिल जाता है, ये तो फीचर किसका हुआ, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का हुआ, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का हुआ। तो बहुत सारे फीचर जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स के होते हैं वो इस टाइप के पोलार कोवैलेंट बॉन्ड, इसे मैं क्या कहूंगा, पोलार कोवैलेंट बॉन्ड। क्यों पोलार? क्योंकि इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव बना है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव बना तो पोल्स बन गए, लेकिन एग्जीक्यूशन क्या है, शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब क्या हुआ कि पोलार कोवैलेंट बॉन्ड होगा, इज दैट क्लियर? तो पोलार कोवैलेंट बॉन्ड जब कभी भी बनते हैं तो टेक्निकली तो देखा यह जाता है कि वहां शेयरिंग हो रही है, लेकिन सच्चाई ये कि एक तरीके से ट्रांसफर हो गया, राइट। और ऐसा
जो मैं बता रहा हूं इसकी कोई ना कोई टेक्निकल टर्म तो होती होगी, वो टर्म का नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेहद इंपॉर्टेंट टर्म है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में एक क्वेश्चन इसके ऊपर ऑलमोस्ट सर्टेन आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द, ध्यान से सुनिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, एक एटम की काबिलियत, राइट, इट इज द कैपेबिलिटी और द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। जो शेयर्ड हो चुके हैं उनको खींच के अपनी तरफ ले आना, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? तो जब कभी भी दो एटम डिफरेंट एलिमेंट के होंगे और उनमें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर में डिफरेंस होगा तो वो हमेशा कौन से बॉन्ड बनाएंगे, कौन से कंपाउंड बनाएंगे, कौन से बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड टेक्स प्लेस between those atoms which are having the large difference in terms of the behavior of electronegativity. Is that clear? So electronegativity लिखो is defined as, electronegativity is defined as the tendency of an atom. Electronegativity is defined the tendency of an atom to attract shared pair of electrons, towards itself. Electronegativity is the tendency of an atom to attract shared pair of electrons towards itself. Polar covalent bond, देखो polar covalent bond always takes place between atoms. Polar covalent bond always takes place between atoms. Always takes place between atoms having large difference in terms of electronegative, behavior. Electronegative behavior of the two. आई नहीं उसके तरीके से लाइटेस्ट वन, एक से नीचे क्या होगा, राइट, अगर एक इलेक्ट्रॉन खो दिया तो प्रोटॉन बन जाएगा। यू गेट इट? तो ये ऐसा बहुत सारे एटम्स के साथ होता है क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स के इस तरीके से बहुत सारे पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन जाते हैं। नॉन पोलर के हाइड्रोजन के साथ करेगा, दोनों की शक्ति बराबर है या नहीं, इसलिए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीच में आते हैं। क्लोरीन में भी बीच में आते हैं। So non-polar covalent bond always takes place between atoms having the same electronegative behavior. बस सीधी सी बात। जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर सेम है वो कौन से बनाएंगे? नॉन पोलर बनाएंगे। और जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर ज्यादा डिफरेंस है वो कौन से बनाएंगे? पोलर बनाएंगे, राइट। और इससे रेलेवेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जैसे H2O की फॉर्मेशन पूछेंगे आपसे, आप पूछेंगे कि पोलर है नॉन पोलर है, जस्टिफाई योर आंसर। आपसे अमोनिया के बारे में पूछ सकते हैं। तो लेट्स सी हियर, यहाँ पर देखिएगा, अब वाटर की बात कर रहे हैं तो मैं वाटर के केस में ट्वाइस वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर isn't it consist of 2 hydrogen and 1 oxygen। तो मैं 2 हाइड्रोजन ले रहा हूँ, क्रॉस ले रहा हूँ उसके इलेक्ट्रॉन को, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 6। तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट शेल में है वो ये ले लिए मैंने, राइट। अब इन दोनों के बीच में शेयरिंग हो रही है। तो ऑक्सीजन, ध्यान से देखिएगा, ये है 1 2 3 4, इसका ये 5वां इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ, 6ठा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ। तो यहां मैं हाइड्रोजन कर रहा हूं, यहां मैं हाइड्रोजन कर रहा हूं। कहने का मतलब है O 1 2 3
4, right? And that happens to be this and this. समझाया मैंने क्या किया यहाँ? ये हो गया डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ भी हो गया डेल्टा पॉजिटिव, और ये हो गया डेल्टा नेगेटिव। तो आप ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था, ये ऑक्सीजन का है, तो इन दोनों के बीच में हुई, तो इस हाइड्रोजन के पास अपने इस बेचारे को लग रहा है कि मेरे स्टेबिलिटी आ गई, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसको भी लग रहा है मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो कोवैलेंसी तो पूरी होगी ना हाइड्रोजन के केस के अंदर अगर हम देखें तो। और रही बात ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए या नहीं, काउंट करके देख लो। तो कोवैलेंसी ऑफ एवरी एटम गेट्स फुलफिल्ड, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ a stable compound known as water. Now they will ask you how many pair and non-pair of electrons are there. Lone pair of electrons कितने हैं इसके अंदर? Lone pair of electrons एक तो ये है जो इंटरेक्ट नहीं कर रहा, राइट? 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड पेयर है और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर है? So that leads to the formation of H2O. Any doubt to it? देखना वॉइस सारी जल्दी जाकर देखो, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखा करो यार, आगे मत बैठा करो, थोड़ा घुमा करो। हाँ क्लियर है? हाँ बेटा, सेम हो, कम नहीं होगा, सेम होनी चाहिए, कम होगा तो भी पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा। नहीं नहीं, तो थोड़ा भी कम नहीं, बराबर चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नॉन पोलर। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट के बीच में बनते हैं और एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट के बीच में भी बन सकते हैं, प्रोवाइडेड द इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर इज सेम। पढ़ोगे ना धीरे धीरे आगे। हाइड्रोकार्बन में CCl4 है, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर हम क्या देखते हैं कि एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास भी आगे हम देखेंगे आने वाले टाइम के अंदर, और बाकी आप हायर क्लास में भी देखेंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई यहाँ? अब आप 11th क्लास के अंदर जब H2O मॉलिक्यूल देखेंगे तो आपसे ये भी पूछेंगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। मोर देन 100। कंपाउंड्स के एंगल्स भी पता होने चाहिए, किस किस एंगल, शेप क्या है इसकी, ऑर्बिटल कौन सी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन से बना है, sp, sp3, sp2, sp3d, बहुत सारे हैं ऐसे। तो ये सब आपको गहराई में पढ़ना है जब आप हायर क्लास में जाओ, राइट? अब इससे आप अमोनिया का, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा उसका 2 5, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, राइट? तो नाइट्रोजन में ये क्रॉस। अब यहां से देखिए अमोनिया 1 नाइट्रोजन and 3 hydrogen, right? One molecule of ammonia consists of 1 nitrogen and 3 hydrogen, 1 nitrogen and 3 hydrogen. तो आप ये देखिए कि इसका मैंने एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का लिया, एक इलेक्ट्रॉन मैंने किसका लिया है यहाँ पर, हाइड्रोजन का, राइट? फिर दोबारा एग्रीड, राइट? समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, अब 7 और 8। आप ध्यान से देखिए कि कितने, जस्ट ए मिनट,
डॉट जो है वो नाइट्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये क्रॉस हाइड्रोजन का। तो हर हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? कोवेलेंसी फुलफिल्ड हो गई। और हर नाइट्रोजन के पास कितने, इनफैक्ट एक नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। तो ये बन गया ना दिस, गॉट इट और नॉट? दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। बेटा जी क्लियर है सब? ये पोलर तो ये पोलर होगा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो व्हाट डू यू मीन बाय पोलर एंड नॉन पोलर भी आई थिंक सो आपको समझ आ गया, सिंगल समझ आ गया। तो पानी का भी देख लिया, अमोनिया का भी देख लिया, बाकी ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन से बाद में देखेंगे चैप्टर के साथ साथ, राइट। अब आ जाते हैं डबल पर, ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा? द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन अ कार्बन, बिटवीन एटम्स, राइट। तो अगर हम O2 की बात करते हैं, O2 तो में एक है, देखो ना ध्यान से, वन पे ये बनी तो है। एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के बीच में एक है। हाँ, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही रहेगा ना, क्योंकि जो एग्जिस्टेंस है अमंगस्ट द एटम्स वो तो ए वन पेयर का ही तो है। शेयरिंग, शेयरिंग इज ऑलवेज बी वन पेयर एज पर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज कंसर्न। वो अभी ऑक्सीजन से क्लियर हो जाएगा। वाटर के मॉलिक्यूल H2O है ना, तो इसमें आप ये देखिए ये ऑक्सीजन है, ये यहाँ कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई ना, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग दोनों के बीच में वन पेयर, यहाँ भी वन पेयर। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट इज डबल बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के इसके मान लिया 6 इलेक्ट्रॉन है, राइट, दूसरे के भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अब होगा क्या यहाँ, 1 2 3 4। अब देखो इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 1 2, मैं ब्लैक से ले रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। समझ में आ रहा है नहीं किसान? और इस वाले के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड हेंस डबल बॉन्ड हो गया। ये क्या है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है? टू पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कोवेलेंसी फुलफिल्ड बन गया O2। दिस इज द वे थ्रू विच वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ O2। दूसरा एग्जांपल भी लूंगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन के बाद 1 2 3 4, ऑक्सीजन का क्रॉस ले लो 1 2 3 4 5 6। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कितने ऑक्सीजन चाहिए? 2 ऑक्सीजन चाहिए। अब कैसी शेप बनेगी, जरा बनाना कोशिश करो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बनाने की। यानी देखो कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर रहे हैं, तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स को मैं ऐसे रख रहा हूं, देखो
और एक ऑक्सीजन को मैं यहां रख रहा हूं जिसके 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। देखो इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हो गए इसके पास, इसके पास भी 8 हो गए। और कार्बन के पास देखो कितने हो गए? 4 ये हैं, 4 ये हैं, 8 कर गए। सारे सेटिस्फाइड, सबकी कोवेलेंसी फुलफिल्ड, ऑक्टेट कंडीशन इज अचीव्ड एंड हेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला देखो, स्ट्रक्चरल फार्मूला ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, डॉट ये 2 बार ले लेंगे, यहां भी 2 बार लेंगे। दिस इज नोन एज व्हाट? और हाइड्रोकार्बन की बहुत सारे एग्जांपल है, वो आगे चैप्टर के साथ साथ देखेंगे। हैव यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड? नेक्स्ट इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। Triple covalent bond is the bond that is formed by the sharing of 3 pair of electrons between atoms, right? जैसे नाइट्रोजन N2 की फॉर्मेशन है, तो नाइट्रोजन के केस में 1 2 3, इस वाले नाइट्रोजन के साथ भी 1 2 3 4 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका 2 5, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, राइट? इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन हुआ, कॉम्बिनेशन कैसे होगा? 1 2 3 इधर ले आओ, इस वाले के भी 3 ले आओ, बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दो। तो ध्यान से देखो, ट्रिपल बॉन्ड बन गया है नहीं इनके बीच में, राइट? क्या टफ है? आसान है या नहीं? दिस इज नोन एज N2, राइट? तो आई होप ये क्लियर है आपको। हाँ बेटा जी, समझ में आ रहा है? सर जैसे इसमें हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, हर हाइड्रोजन का एक शेयर हो रहा है इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, एक हाइड्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन। तो सर फिर इसमें भी 2 पेयर हो गए ना? बिटवीन टू कार्बन, बिटवीन टू एटम्स के बीच में एक पेयर है या 2 है? बिटवीन 2 एटम्स, इसी वजह से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं। अगर इसको अलग अलग काउंट करके 1 1 मत करो आप, 2 के बीच में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर एक है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर यहाँ पर मान लिया एक और हो जाता है, यहाँ आ जाता डबल। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर सिंगल भी होता है, डबल भी होता है, राइट? तो वहां पर IUPAC नेम के अकॉर्डिंगली हम उनको अलग से नाम देते हैं, वो आगे फ्यूचर की बात है। फिलहाल इस केस के अंदर आप सिंगल का मतलब ये मत समझो कि यहाँ पर 2 या 3 सिंगल बन रहे हैं। सिंगल का मतलब, सिंगल कोवेलेंट का मतलब क्या है कि 2 एटम के बीच में अगर 1 पेयर के कारण बॉन्ड बना, तो यहाँ कहीं डबल दिख रहा है? चाहे यहाँ सिंगल 10 भी बन जाते हैं, अगर मैं CCl4 की बात करूं, तो क्या हम इसको टेट्रा कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, राइट? सिंगल ही है, तो टेक्निकली सिंगल का तो समझ में आ गया, राइट? हाँ बेटे। The requisite number of electrons, the requisite number of electrons to achieve inert gas electronic configuration by sharing of electrons, through sharing of electrons, कोवैलेंसी, उसको हम बेसिकली कोवैलेंसी कहेंगे। हाँ हाँ, बिटवीन 2,
बिटवीन दो, तो ट्रिपल हो गया ना वो, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रिपल, राइट। तो यानी कि जितने भी कंपाउंड्स कोवेलेंट बॉन्ड के कारण बनते हैं उनको हम कोवेलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली अवेलेबल इन लिक्विड और गैसेस फॉर्म, सम आर अवेलेबल इन द सॉलिड फॉर्म। अब मैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स बता रहा हूँ। दे हैव द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, they don't conduct electricity because of the non-availability of free electrons, right? They are generally soluble in organic solvents but not soluble in water, except some glucose, sugar, यूरिया, ये सब ऑर्गेनिक है लेकिन ये पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, there are some which actually being dissolved, exceptions are always be there, but most of the organic compounds won't dissolve in water. तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, इसके ऊपर नोट अपने आप बना लेना, लखनऊ सिंह में सारी डिटेल अवेलेबल है, राइट। तो इन दैट वे आज जो हमने किया वो लखनऊ सिंह में नहीं है, इसे आप अपने लेवल पर रात को सोने से पहले कन्फाइन कर लेना, मैं नोट्स भेज रहा हूँ उसके, ठीक है, अभी अपलोड कर दूंगा और अपनी लैंग्वेज के अंदर लिख लेना, दैट्स मोर देन एनफ। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि मैं आपको अगली क्लास के अंदर इसके अपने ऐसे कंसंट्रेटेड नोट्स दे दूंगा, कंसंट्रेटेड मतलब आपको नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, राइट। पूरा वास्ट चैप्टर जो है वो आपको थोड़ी सी डिटेल में मिल जाएगा, राइट। तो अगर आपका कल पेपर है तो आप सिर्फ वो मेरे 2-3 पेज ही पलटोगे, उसमें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म। अब की तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो देखा जाए 60% तो ऑलरेडी डिलीटेड है, 60% तो है ही। जहां से कहते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होती है, बात नहीं खत्म हो जाती है, राइट। तो हम कुछ नहीं, एक तरीके का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, पर प्लीज इससे आगे के पोर्शन को मैं जो आपको दूंगा कर लेना, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी फ्यूचर में। That is it for today. I'll be meeting the next class. Please do share your feedback in a sense कि मुझे पता लगे कि आज की क्लास कितनों को समझ आई, कितनों को नहीं समझ में आई। मोस्ट वेलकम। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मिलेगी क्लास जो है, अगर इन केस आपको वीडियो सेशन चाहिए तो एडिटिंग वगैरह में वक्त लगता है, राइट। So that is it for today. We'll be meeting the next class. Good night. Take care.